Adhyakshi, it is deeply unfortunate that this House is even compelled to discuss a motion of this nature. To remove a speaker who is known for his impartiality, his integrity, his fairness and firmness. I stand here to oppose this motion with full firmness, not only because I consider opposing this a political duty, a constitutional obligation, but most importantly, this is my moral duty to support the custodian of this House who has given voice to every single member of this House. अध्यक्ष जी, कल से बहुत लंबी चर्चा हुई है और इसके मूल कारण क्या है, इसके बारे में भी कई सारे थियरीज कल से प्रस्तुत हुई है। पिछले सत्र में जो एलओपी को बात रखने के लिए मौका नहीं दिए, दिस हैज बीन साइटेड एज द मेन ट्रिगर फॉर दिस motion of removal of the speaker. But Speaker sir, I feel that that is not the main reason. Main reason to bring about a motion of this kind is the Congress party and more particularly the Gandhi family's inability to accept equal treatment before everybody. Those who are accustomed to dynastic privilege will feel that even equality is injustice. ये अहंकार और अनुशासन के बीच का लड़ाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपके पीछे सेंगोल है जो धर्म दंड है और सदियों से इस देश में राजा को धर्म के नीचे माना जाता था और अपने धर्मशास्त्रों में कहा जाता है धर्मो राजनहा परो दंडहा, which means that even the king, even the emperor is below the dharma. पर इसका ब्रिटिश और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में इसका अलग व्याकरण है। वहां किंग कैन डू नो रॉन्ग, इस एक कल्पना है। कांग्रेस पार्टी भी यही मानसिकता से काम करते हैं। Just like the Western jurisprudence thought the king can do no wrong, the Congress party feels the Gandhis can do no wrong. इसके लिए ये सोचते हैं कि जो कानून बाकी लोगों के लिए अप्लाई होता है वो गांधी के लिए, गांधी परिवार के लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। This is the reason why this institution is today being attacked. And Adhyaksh ji, from yesterday, a lot of members have spoken extensively about Article 105 and said it is a constitutional right of the leader of the opposition to speak in the Lok Sabha as and when he wants because it is protected under Article 105. मैं भी कानून की विद्यार्थी हूं और मैं वकील भी। I have also read Article 105. I have also read Article 118. Article 105 is subject to Article 118, which gives the power to this House to determine how the rules and procedures and the functionality of the House must go under. So, whether it is the Prime Minister or the Leader of Opposition or any other member, he cannot say that he can speak whenever he wants, however he wants, howsoever long he wants. There is a procedure that the House has to be followed. Adhyaksh ji, the problem is that those who are accustomed to dynastic privilege, the moment these rules are exposed, the rules are applied to them, they feel that they are being persecuted. Adhyaksh ji, I want to take your attention and the House attention to one matter. कल से स्पीकर साहब के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इतिहास में सबसे ज्यादा सस्पेंशन अभी हुआ है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूं। 17th लोकसभा और 16th लोकसभा के बीच में जो 5 सेशंस हुई अभी तक, उसका कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। एवरेज प्रोडक्टिविटी 17th लोकसभा में 124% था। इस लोकसभा के फर्स्ट 5 सेशंस में 89% तक गिर गया है। हाईएस्ट सेशन प्रोडक्टिविटी लास्ट लोकसभा में 167% था, इस सेशन में 137% को गिर गया है। लोएस्ट जो था लास्ट लोकसभा में वो 89% था, इस सेशन में मात्र 31% तक गिर गया है। फर्क क्या है दोनों में? लास्ट लोकसभा में कांग्रेस के पास 44 सीट्स थे, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा था लोकसभा का। इस बार 99 सीट्स है, इसलिए डिसरप्शन ज्यादा हो रहा है। अगर सस्पेंशन ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का ये डिसरप्टिव मेंटालिटी इसके पीछे है। अध्यक्ष जी, आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। अध्यक्ष जी, आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। श्री लालजी वर्मा जी, अध्यक्ष जी, बहुत लोग हैं, अभी एचएम को बोलना, माननीय गृह मंत्री जी को बोलना है, ठीक है? नहीं, सबके 2-2 मिनट में हम पहले 3 मिनट दे रहे थे, अब 2 मिनट दे सकते हैं क्योंकि मुझे सबको बुलवाना है। प्लीज माननीय लालजी, कितना समय है मान्य?
दो मिनट नहीं, 7 मिनट हमारा बचा है। दो हमारी पार्टी का 7 मिनट समय बचा है। नहीं, समय ऐसा है कि मान्यवर 7 मिनट समय बचा है आप बोलिए और ना। किसी भी सदस्य को इसमें 25-15 मिनट 25 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता। मैंने 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता, 2003 तो के अनुसार। लेकिन चेयर के परमिशन से मान्यवर बोला मुझे है। आप मौका दें। कम से कम 7 मिनट। मान्यवर आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज ये सदन एक अत्यंत गंभीर और असाधारण विषय पर चर्चा कर रहा है। ये कोई साधारण राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा, निष्पक्षता और संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद इस लोकतंत्र का सबसे ऊंचा संसदीय पद माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने इस पद को इसलिए इतना सम्मान दिया क्योंकि अध्यक्ष को सत्ता और विपक्ष के बीच निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका निभानी होती है। लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से इस पद की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मान्यवर, मुझे भी बड़े उमंग से इस सदन में आया था। मैं उम्मीद करता था कि देश की लोकसभा मर्यादा से, संस्कारों से और नियमों से और संविधान की धाराओं से संचालित होगी और अध्यक्ष न्यायाधीश के पद पर बैठकर निर्णय करने का काम करेगा। हम लोगों का विरोध के अध्यक्ष जी से नहीं है मान्यवर, लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को अपना कठपुतली बनाना चाहती है और अपने अनुकूल निर्णय कराना चाहती है, इस संविधान में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को बड़ा सम्मान का स्थान देने का काम किया गया। मान्यवर, आपके साथ मुझे विधान परिषद में भी रहने का अवसर मिला, आपके साथ विधानसभा में भी रहने का अवसर मिला, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का भी अनुभव करने का अवसर मिला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए हों और उसमें विभिन्न मंत्री समय समय पर खड़े हो जाकर उसमें विघ्न डालने का काम करें। हमें निश्चित रूप से अवसर मिलता है कि हम अपनी बात पहले कहें, उसके बाद अगर हमारी बात कोई गलत है तो दूसरा पक्ष जब अपना बात रखेगा या उत्तर जब देगा तो उस बात का वो खंडन करने का काम कर सकता। लेकिन मैंने देखा हमारे इस नियमावली में जो नियमावली बनाई गई है उसका 253 इस बात को 353 इस बात को कहता है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अपराध रूपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा तब तक कि जब तक कि सूचना के माध्यम से वो न दिया जाए। लेकिन यहीं पर खड़े होते हैं एक सदस्य और वो सदस्य खड़े हो जाते हैं, वो चाहे जो भी बात, जिस तरह का भी किताब पढ़ दें, जिस तरह का भी अनर्गल आरोप लगा दें हमारे आजाद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के ऊपर, हमारे देश के तमाम नेताओं के ऊपर, उनके लिए वो क्षम हो जाता है, उसमें किसी तरह से रुकावट नहीं पैदा की जाती। मान्यवर, मैंने इस बात को भी देखा कि संविधान में प्रधानमंत्री को बड़ा दर्जा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के माध्यम से भी अपशब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, गृह मंत्री के माध्यम से भी अपशब्दों का प्रयोग हो जाता है। उस समय पीठ अगर मौन रहती है तो निश्चित रूप से संदेश पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। निश्चित रूप से मैंने इस बात को भी महसूस किया कि माननीय अध्यक्ष जी मन से चाहते हैं कि विपक्ष के लोगों को बोलने का अवसर मिले। माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि विपक्ष के लोगों को बोलने का अवसर मिले, लेकिन विपक्ष के लोगों को जब सत्तारूढ़ पार्टी, जैसे भी आप चाहते थे कि लोग सदन में चर्चा करें, माननीय गृह मंत्री आकर बैठ गए, आप मजबूर हो गए। इस तरह की जो मजबूरी है यही हमारे नियमों का उल्लंघन करती है। इसलिए मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सुरक्षा होगी और संवैधानिक संस्थाओं के जो बैठे हुए लोग हैं उनके पदों की गरिमा की रक्षा की जाएगी। मानिए, अभी हुआ नहीं मान्यवर, 7 मिनट का समय बचा है।